آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان ہماری روحوں پر کندہ نیا عہد سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ آپ سب، کیا آپ کو سالمن پسند ہے؟ کبوتروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ خدا کے تمام جاندار مخلوقات میں سے میرے سالمن اور کبوتروں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں اقسام میں اپنے گھر لوٹنے کی جبلت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو پھر کیا چیز ان میں اس قسم کی جبلت پیدا کرتی ہے؟ خدا نے ان میں کچھ کندہ کیا تھا جو انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر لوٹنا ہے۔ سالمن دریاؤں سے سمندر تک سفر کرتی ہے اور وہاں رہتی ہے، اور مرنے سے پہلے انڈے دینے کے لیے اپنی جائے پیدائش پر لوٹ آتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ شاید آپ نے مختلف میڈیا، فلموں اور مطبوعات سے اس کے بارے میں سیکھا ہوگا۔ وہ کیسے سمندر میں ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر کے اپنے گھر واپسی کی راہ ڈھونڈ سکتی ہیں۔ ان کے پاس جی پی ایس نہیں ہے۔ آج کل ہمارے پاس ایک کار جی پی ایس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ 100 کلومیٹر میں دائیں مڑیں، یہاں ایک سپیڈ بریکر ہے۔ چونکہ یہ تمام سمتیں دیتا ہے تو بعض مکمل طور پر اس پر انحصار کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں۔ اگرچہ سالمن یا کبوتروں کے پاس ایسے آلات نہیں ہوتے، پر وہ پھر بھی اپنے آبائی گھر واپس جانے کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کبوتروں کے دماغ میں میگنیٹائٹ نامی مادہ نصب ہوتا ہے جو انہیں سینکڑوں میل سفر طے کر کے اپنے گھر واپس آنے کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے ابر آلودین پر یا آدھی رات میں بھی جب روشنی نہ ہو، کبوتر اپنا گھونسلہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور بغیر ناکامی کے وہاں لوٹ سکتے ہیں۔ خدا نے ان کے اندر ایسی جبلت کو کندہ کیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی دور جاتے اور کئی سالوں تک اجنبیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ ناگزیر طور پر مرنے سے پہلے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس قابل ذکر منظر کے گواہ ہیں، تو ہم شاید سوچیں کہ کیا کچھ ایسا نہیں ہوگا جسے خدا نے ہمارے اندر کندہ کیا ہوگا تاکہ ہمیں ہماری روحوں کا اصل گھر ڈھونڈنے اور وہاں لوٹنے میں مدد ملے۔ آپ سب، کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ خدا نے اپنے لوگوں کے دلوں پر ایک معجزانہ تحفہ کندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہم اس کا بغور جائزہ لیں اور سوچیں اسی وجہ سے ہم اس قسم کا ایمان اور ذہنیت رکھنے کے قابل ہوئے۔ اس کے وسیلہ ہم نے خدا باپ، خدا ماں کو اور اپنے آبائی گھر آسمان کی بادشاہی کو جانا۔ آئیں کتاب مقدس سے جواب معلوم کرتے ہیں۔ خدا نے کبوتروں اور سالمن میں ایک جبلت کندہ کی تھی تاکہ وہ اپنے گھر لوٹ سکیں۔ خدا کی ایسی حیران کن دور اندیشی ہماری روحوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو سکتی ہے؟ یرمیہ باب 31 سے ہم احتیاط سے اس موضوع پر غور کرتے ہیں کہ ہماری روحوں پر نیا عہد کندہ ہے۔ ہم یرمیہ باب 31 آیت 31 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یرمیہ باب 31 آیت 31 میں یہ لکھا ہے کہ دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت، خدا اپنی شریعت کہاں رکھیں گے؟ ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا۔ خدا نے کہا، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ چونکہ خدا نے کبوتروں کے دماغ میں میگنیٹائٹ لگایا ہے، اس لیے وہ بغیر کسی جی پی ایس کے، حتیٰ کہ ابر آلود دنوں میں یا آدھی رات میں بھی اپنے گھر لوٹنے کے قابل ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی دور چلے گئے ہوں۔ اسی طرح کچھ ایسا ہے جو خدا نے ہم میں کندہ کیا ہے تاکہ ہم اپنے آسمانی گھر اور آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی باہوں میں لوٹ سکیں۔
खुदा ने हम में क्या कंधा किया था? उन्होंने कहा, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा। ये कहने का दूसरा तरीका क्या है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हम में अपनी शरीयत कंधा की है? मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। जिनमें खुदा की शरीयत नहीं है, वो राह नहीं ढूंढ सकते, वो आसमान की राह नहीं ढूंढ सकते और आसमानी बाप और आसमानी माँ की आवाज उनके अंदर काम नहीं कर सकती। अगर कबूतर के दिमाग से मैग्नेटाइट निकाल दिया जाए तो वो 10 मीटर दूर से भी अपना घर नहीं ढूंढ सकता। ताहम खुदा ने कबूतर के दिमाग में मैग्नेटाइट नामी पुरस्रार मादा नस्ब किया और उसे अपने घर लौटने की इजाजत दी, चाहे वो कितनी ही दूर उड़ जाए। इसके अलावा एक सालमन कई सालों तक समुद्र में घूमती रहती है और जब वो मरने के करीब होती है तो अंडे देने के लिए वो अपने घर वापस आती है और वहीं मर जाती है। हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो खुदा ने सालमन में कंधा किया है। तो फिर खुदा अपने लोगों में क्या कंधा करेंगे? खुदा कहते हैं कि वो अपनी शरीयत को उनके बातिन में रखेंगे। अगरचे दुनिया में लोग सब्बत का दिन और फसा नहीं मनाते बल्कि क्रिसमस मनाते हैं, पर वो अपने दिलों में कोई बेचैनी या परेशानी महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि उनमें खुदा की शरीयत नहीं है, जबकि खुदा ने हम में अपनी शरीयत कंधा की है। और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। खुदा ने हमें आसमान की बादशाही के बारे में सिखाया और हत्ता कि हमें वहां लौटने की ताकीद की है। जिन लोगों के दिलों में खुदा की शरीयत है, वो रद्द अमल जाहिर करेंगे। खुदा का कलाम उनके दिलों पर असर करेगा और उनकी रूहें तहरीक पाएंगी। हत्ता कि अगर लोग सब्बत के दिन, ईद फसा और खुदा माँ के बारे में एक ही खबर सुने तो रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। कुछ गहरा रद्द अमल जाहिर करते हैं, कुछ जुज़वी रद्द अमल जाहिर करते हैं और कुछ बिल्कुल रद्द अमल जाहिर नहीं करते। जब यीशु 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आए थे तो उन्होंने कहा, मैं इस ज़मीन पर आसमान से खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। क्या उन्होंने इस कलाम का ऐलान नहीं किया था? ऐसे लोग हैं जो खुदा की आवाज पर रद्द अमल जाहिर करेंगे। उन लोगों के पास क्या है? खुदा ने उनमें क्या कंधा किया है? खुदा ने उनमें अपनी शरीयत कंधा की है। खास तौर पर यह कौन सी शरीयत है? खुदा ने उनमें नई अहद की शरीयत कंधा की है। तो फिर मत्ती बाब 13 की तरफ जाते हुए हम उस मंजर पर एक नजर डालते हैं जहां खुदा ने नई अहद की शरीयत को कंधा किया था। मत्ती बाब 13 आयत 24 देखते हैं। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? ये किसने किया था? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। दुश्मन ने कड़वे दानों के साथ क्या किया था? दुश्मन ने कड़वे दाने बोए थे। कुछ लोगों के दिलों में कड़वे दाने बोए गए और दिगर लोगों के दिलों में खुदा की शरीयत बोई गई। कड़वे दाने दुश्मन इब्लीस ने बोए थे। दूसरी तरफ खुदा ने नए अहद की सच्चाई की मुकद्दस शरीयत को अपने लोगों के दिलों पर कंधा किया था। जब हम कहते हैं आओ आसमान की बादशाही में चलें, तो बाज लोग जवाब देते हैं कि ओ, मैं अपनी कुव्वत पर भरोसा करूंगा। आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? क्या होगा अगर आप जहन्नम में जाएं? वो लापरवाही से जवाब देते हैं, हर कोई जहन्नम में जा रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसकी वजह यह है कि उन पर खुदा की मलकियत के अलावा कुछ और कंधा है। कड़वे दाने किसने बोए थे? आयत 37 की तरफ जाते हैं।
आयत 37 में ये लिखा है कि उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। अच्छा बीज किसने बोया था? ये यसू थे। दूसरे अल्फाज में, जब यसू इस ज़मीन पर आए थे तो उन्होंने हम में कौन सी शरीयत रखी थी? उन्होंने हमारे दिलों में नए अहद की सच्चाई की शरीयत बोई थी। और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद, और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है। चूंकि इब्लीस ने सारी दुनिया में कड़वे दाने बोए थे, इसलिए कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करता, अगरचे हम 100 या 1000 बार सच्चाई की मुनादी करें। इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? लोग इस किस्म का रवैया रखते हैं। आप सब, जो हमें करने की जरूरत है वो खुदा की मर्जी की पैरवी करना है, जो खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आए थे, और उनके खोए हुए फर्जंदों को ढूंढना है। हमें सब लोगों को मुनादी करनी चाहिए। फिर भी खुदा के फर्जंदों की एक खास खुसूसियत होती है। खुदा ने अपने फर्जंदों के दिलों पर क्या कंधा किया है? चूंकि खुदा ने उनके दिलों पर नए अहद की शरीयत को कंधा किया है, इसलिए जब हम उन्हें खुदा बाप और खुदा माँ के बारे में बताते हैं तो वो आसानी से समझ आते हैं। जब हम मुनादी करते हैं कि जैसा कि हम तारीख से देख सकते हैं कि फसा 325 बाद मसीह में मनसूख कर दी गई थी, ताहम क्या हमें उस सच्चाई पर मबनी ईमान की जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जो असल में यसू ने हमें सिखाई थी? तो वो फौरन आमीन कहते हुए समझ जाते हैं। ऐसा क्यों है? उनमें कंधा किए गए अल्फाज इस रद्द अमल को जाहिर करते हैं। ताहम जिनके अंदर कड़वे दाने बोए गए हैं, चाहे हम उन्हें कितनी ही मुनादी करें, वो जवाब नहीं देते। इसकी वजह यह है कि खुदा की शरीयत उनमें काम नहीं करती है। तसव्वुर करें कि खुदा कबूतर के दिमाग से कोई मादा निकाल देते हैं जो उसे आसानी से घर लौटने की इजाजत देता है। मादा के लगाए जाने के मुकाबले में सूरत हाल कितनी हद तक बदल जाएगी। इसी वजह से खुदा ने कहा, मैं नया अहद कहलाने वाली अपनी शरीयत को उनके दिल पर लिखूंगा। यह दुनिया में किसी शख्स या इदारे की शरीयत नहीं है, बल्कि खुदा की शरीयत है। खुदा ने नए अहद को अपनी शरीयत कहा और इसे हमारे दिलों पर कंधा किया। लिहाजा हम किसकी आवाज से कह सकते हैं कि नई अहद की ये शरीयत कही गई थी? ये खुदा की आवाज है। इसलिए बिल आखिर खुदा के फर्जंद जब उनकी आवाज सुनते हैं तो रद्द अमल जाहिर करते हैं। सब्बत का दिन हफ्ता ही होना चाहिए, क्योंकि खुदा कहते हैं कि अगर हम फसा मनाएं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देंगे, तो इसे मनाना अच्छा होगा। वो कहीं ज्यादा वाज़ेह जवाब देंगे। मैं अब तक ये क्यों नहीं जानता था? दुनिया में पादरियों ने मुझे इस तरह क्यों नहीं सिखाया? खुदा कहते हैं कि हमारे आसमानी खानदानी अराकीन का ऐसा रद्द अमल फौरन जाहिर होगा। इसलिए हमें ये नहीं चुनना चाहिए कि किसको मुनादी करें, बल्कि वक्त और बेवक्त हमें सबको मुनादी करनी चाहिए, चूंकि हम नहीं जानते कि लोगों के दिलों में क्या बोया गया है। तो क्या हमें हर एक शख्स को खुदा की आवाज पहुंचाना और इसका ऐलान नहीं करना चाहिए? आइए हम बाब 13 आयत 16 की तरफ जाते हैं। बाब 13 आयत 16 में यीशु कहते हैं कि लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो क्या करती हैं? देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने कानों से सुन सकते हैं। बाज़-औक़ात हम गलती से सोचते हैं कि खुदा इस ज़मीन पर आए और हमें अपनी आवाज सुनाई, और हमने अपनी अच्छी याददाश्त से उनकी तालीमात को याद रखा और अब उन पर अमल कर रहे हैं। ताहम ऐसा नहीं है। अगरचे खुदा इस ज़मीन पर आए और बनिनो इंसान को अपनी तालीमात बख्शी, पर कुछ लोग रद्द अमल का इजहार करते हैं जबकि दीगर नहीं करते। अगर हर कोई तालीमात सुनकर रद्द अमल जाहिर करे तो ये जगह खचाखच भर जाएगी। यहाँ इस आयत में यीशु ने कहा, मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। ताहम दूसरे इसे ना देख सके, हालांकि यीशु ने उन्हें दिखाया था, और ना ही वो सुन सके, हालांकि यीशु उनसे बात करते थे। ये वाकई शानदार है। इसलिए क्या हमें हमेशा बाप और माँ को शुक्र, इज्जत और जलाल नहीं देना चाहिए कि वो हमें नए अहद के खुदा के मुकद्दस फरमानों, कवानीन और ज़ाब्तों को समझने की इजाजत देते हैं? आयत 10 देखते हैं।
शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ क्या हुआ है, दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। अगरचे यकसमवाद दिखाया गया है, हमें समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। अगर कबूतर से मैग्नेटाइट निकाल दिया जाए तो वो हरगिज अपने घर की राह नहीं ढूंढ सकेगा। खुदा ने उसमें मैग्नेटाइट सिर्फ इसलिए रखा है कि वो अपने घर को ठीक तरीके से ढूंढ सके। इसी तरह हमारे रूहानी घर को लौटने की गर्ज से खुदा ने हमें क्या कंधा किया है? खुदा कहते हैं कि वो हमें नए अहद की शरीयत रखेंगे। चूंकि खुदा ने कबूतरों में मैग्नेटाइट की तरह नए अहद की शरीयत को हम में कंधा किया है, इसलिए हमारे कान, आंखें और दिल आसमानी बाप और आसमानी माँ की आवाजों का जवाब दे सकते हैं जब वो अपनी आवाज सुनाते हैं। आइए हम यूहन्ना की किताब बाब 10 आयत 25 से देखते हैं। यसू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। खुदा इस जमीन पर आए और सच्चाई का ऐलान किया, हमें आसमान की बादशाही के बारे में सिखाया और सच्चाई की तालीमात के मुताबिक हमारी रहनुमाई की। फिर भी लोग क्या करते हैं? वो ईमान नहीं लाते। उनमें क्या कमी है? जिनके पास खुदा के नए अहद की शरीयत नहीं है, वो खुदा या उनकी तालीमात को कबूल नहीं कर सकते। आयत 25, जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आयत 27, मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यसू के कहने का मतलब था कि चूंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो, इसलिए मैं कितनी ही बार सच बोलूं तुम ना सुनोगे। तुम्हारी आंखें ढकी हुई हैं, तुम्हारे कान ढके हुए हैं और तुम्हारे दिल बंद हो गए हैं। उनमें क्या कमी है? ये सब इसलिए है कि उनमें नई अहद की शरीयत नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि हम आज यहां मौजूद हैं? यसू ने क्यों कहा कि हम मुबारक हैं? सयून आने में किसने हमारी रहनुमाई की? ये नया अहद है, यानी हमारे अंदर सच्चाई की शरीयत। ये खुदा की शरीयत है, यानी नया अहद जो खुदा ने हम में कंधा किया है, जिसने हमें उनके पाक कलाम पर अमल करने के काबिल बनाया और सयून आने में हमारी रहनुमाई की। दूसरे अल्फाज में खुदा ने हमारी आंखें, हमारे कान और हमारे दिलों को खोला और इन्हें अपने कलाम पर अमल करने पर मजबूर किया। खुदा ने पेशतर ही इन्हें यूं पैदा किया था। लिहाजा शैतान चाहे कितना ही हमें रोके, हमें किसी रुकावट से मुतासिर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा नए अहद की सच्चाई को अजीज रखना चाहिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। हम रूह और दुल्हन की आवाजों की पैरवी करते हुए सयून में आए हैं जो बनी आदम को बुला रहे हैं। लिहाजा हम निजात के जलाल में शरीक होने में हरगिज नाकाम ना हो जो आसमानी बाप और आसमानी माँ सयून में बख्शते हैं। हम यसाया बाब 29 आयत 9 की तरफ जाते हैं और मालूम करते हैं कि यसू और नबियों ने उन लोगों से क्या कहा था जिनके दिलों में नई अहद की शरीयत नहीं है। यसाया बाब 29 आयत 9 में यह लिखा है कि ठहर जाओ और ताजुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशे में नहीं, क्योंकि खुदामा ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर हिजाब डाल दिया और सारी रोया तुम्हारे नजदीक। ये रोया किताब मुकद्दस की तरफ इशारा करती है। सही, ये सारी किताब मुकद्दस सर्ब मोहर किताब के मजमून की मानिंद होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे। वो क्या जवाब देंगे? क्या वो इसे पढ़ सकते हैं?
मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर्वमोहर है। उनके पास ये कहने के सिवा कोई चारा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब है। इसकी वजह यह है कि खुदा ने उनमें इसे समझने की सलाहियत नहीं रखी थी। हम आयत 12 से जारी रखते हैं। और फिर वो किताब किसी नाखानदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। जो पढ़ सकते हैं और जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए इस किताब की तफसीर करना नामुमकिन है। तो फिर वो लोग किस किस्म के हैं जिन्हें पढ़ा लिखा और नाखानदा कहा गया है? आयत 13 से जारी रखते हैं। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त किस किस्म की तालीम से? आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। वो इंसानी अहकाम मानते हैं। दूसरे अल्फाज में शैतान के बोए गए कड़वे दाने उनमें बकसरत हैं। जिन लोगों के दिलों में खुदा की शरीयत बोई गई है और जिन लोगों के दिलों में शैतान के बोए हुए कड़वे दाने हैं, उनमें वाज़ेह फर्क है। इसलिए चाहे हम उन्हें कितने ही खुदा के कलाम की मुनादी करें, कोई रद्द अमल जाहिर नहीं होता। दुनियावी लोगों की कहावत है कि कोई लेना देना नहीं है। अगरचे इशारा भेजा गया है, वो इसे हासिल करने से कासिर हैं। क्या वो इंसानी अहकाम पर अमल करते हुए खुदा के अहकाम को कबूल कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम किसी ऐसे शख्स को किताब मुक़द्दस दें जो पढ़ सकता हो और कहें मेहरबानी से इसे पढ़ें, तो वह जवाब में कहेगा मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये सर्वमोहर है। या अगर हम किसी ऐसे शख्स को किताब मुक़द्दस दें जो पढ़ नहीं सकता और कहें मेहरबानी से ये पढ़ें, तो वो जवाब देगा मैं पढ़ना नहीं जानता। दोनों कहते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते। चूंकि खुदा की शरीयत उनके दिलों में नहीं है, इसलिए उनके लिए खुदा के मुक़द्दस कलमात ऐसी किताब बन जाते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता। किताब मुक़द्दस में इसे ताजुब खेज कहा गया है। वो दुनिया में खुसूसी इल्म रखने वाले के तौर पर अपने इल्म पर फख्र करते हैं। बस उन्हें खुदा की मर्जी से अच्छी तरह आगाह होना चाहिए। ताहम हकीकत में वो खुदा की मर्जी को नहीं जानते। ये वाकई एक पूरी इसरार और हैरानकुन मजहर है। आयत 13 से जारी रखते हैं। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और ताजुब खेज होगा, यानी पूरे इसरार और गैर मामूली सलूक। और इनके आकिलों की अकल इसके साथ क्या होगा? जायल हो जाएगी और इनके दानाओं की दानाई जाती रहेगी। बात शायद सोचें कि वो शख्स बहुत ज़हीन, आला तालीम याफ्ता और कई गैर मुल्की जुबानें बोलने के काबिल मालूम होता है। इस दर्जे की अकल से वो शख्स किताब मुक़द्दस का गहराई से तज्जिया करने के काबिल होगा। ताहम खुदा ने नबुवत की थी कि आकिलों की अकल जायल हो जाएगी और दानाओं की दानाई जाती रहेगी। उनमें क्या कमी है? उनमें खुदा की शरीयत नहीं है। खुदा ने कहा, मैं अपनी शरीयत उनके बातिने में रखूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए आज इस मकाम पर आप और मैं कितने मुबारक हैं, चूंकि खुदा ने हम पर बरकत नाज़िल की हैं और हमारी रहनुमाई यहाँ की है, इसलिए हम आज यहाँ आने के काबिल हैं। ज़ाहिरी तौर पर शायद आप सोचें, यह डिकनेस मुझे यहाँ लाई है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें यहाँ लाया हो। ताहम जब उन्होंने आसमानी बाप और आसमानी माँ की आवाज़ हम तक पहुंचाई, तो हमारे अंदर खुदा की शरीयत ने रद्द अमल जाहिर किया। सादा अल्फाज में कहें तो ताल्लुक बनाया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर समझ सकता हूँ, ये ईमान की जिंदगी गुजारने का हकीकी तरीका है। हम फौरन घुटने टेकर कह सकते थे कि मैं 30 सालों से धोखा खा रहा हूँ। मैं इंतहाई अंधा था और मैं इतवार की इबादत करता और क्रिसमस मनाता था और सलीब के सामने बेशुमार बार दुआ करता था, जैसे उसमें कोई पुरस्कार ताकत हो। इस तरह
جب ہم میں کندہ خدا کی شریعت نے خدا کے کلام کا جواب دینا شروع کیا تو کیا ہوا؟ ہم سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ ہم سمجھ سکے تھے کہ اس سارے عرصے میں میں نے سوچا کہ میں صحیح طریقے سے خدا کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں میں سورج دیوتا کی تعظیم کر رہا تھا، جو خدا کے نزدیک سب سے نفرت انگیز ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا کے لوگوں کے دلوں پر ایسی سمجھ کندہ ہے۔ چونکہ یہ ہمارے دلوں میں بوئی گئی ہے اور ہماری روحوں پر کندہ ہے، تو ہم سبت کے دن اور فسح کو جلد سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں، کان اور دل کھل گئے ہیں۔ تاہم لوگ چاہے کتنے ہی دانش مند اور ذہین کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دلوں میں انسانی احکام گہرائی سے کندہ ہیں تو وہ کتاب مقدس میں موجود خدا کے راست قوانین کا جواب نہیں دیں گے۔ حزقیل باب 47 میں یہ لکھا ہے، آب حیات ہیکل سے بہتا ہوا ایک بڑا دریا بن جائے گا، اور یہ سمندر میں ملتے ہی وہاں کے پانی کو شیرین کر دے گا۔ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ ان میں ایسی مخلوقات ہیں جو شیریں نہ ہوں گی۔ یہ لکھا ہے کہ کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر ان میں آب حیات بھی جاری ہو تو یہ ان کے لیے بے فائدہ ہوتا ہے۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں کی تمام تعلیمات ہمارے لیے زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کتاب مقدس کے ان تعلیمات کے ذریعے باپ اور ماں ہمیں حواس اور فہم بخشتے ہیں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں لوٹ سکیں۔ کیا ایسا نہیں؟ سالمن کی بات کریں تو سائنسدانوں نے اب تک سالمن کے اپنے گھر لوٹنے کا صحیح راز دریافت نہیں کیا ہے۔ پھر بھی امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے کینیڈا میں سالمن پر ایک تجربہ کیا، اور 12 تجربات کے نتیجے میں وہ اس کا سراغ ڈھونڈ سکے۔ کیا زمین میں میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے؟ شمالی اور جنوبی قطب ہیں۔ انہوں نے جزوی طور پر دریافت کیا کہ سالمن زمین کے میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کر کے کیسے گھر کا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ اگر خدا نے سالمن میں زمین کے میگنیٹک فیلڈ کو استعمال کرنے کی قابلیت نہ ڈالی ہوتی تو ایک بار جب وہ سمندر میں چلی جاتی تو وہ ہرگز اپنے گھر واپس نہ جا سکتی۔ تاہم جب بھی سالمن کے انڈے دینے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر لوٹتی ہے، انڈے دیتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ خدا نے سالمن کو کوئی شاندار چیز بخشی ہے تاکہ وہ زندگی کے اس چکر کو دہرا سکے۔ جب ہم چھوٹی عمر کے بچوں کا مشاہدہ کریں تو انہیں گھر کا راستہ ڈھونڈنے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ سالمن جیسی غیر معمولی قابلیت نہیں رکھتے۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ صرف آگے بڑھنا جانتے ہیں لیکن واپس لوٹنا نہیں جانتے۔ خدا نے کبوتروں اور سالمن کے اندر کچھ ایسا ڈالا ہے جو انہیں اپنے گھروں کو لوٹنے کے قابل بناتا ہے۔ انہیں خدا سے ایسی قابلیت ملی ہے۔ اسی طرح خدا نے ہم میں کیا کندہ کیا تھا جو ہمیں اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹنے کا عزم کرنے کے قابل بناتا ہے؟ خدا کہتے ہیں، میں اپنی شریعت ان کے دلوں پر لکھوں گا، اس لیے جب بھی میری آواز سنائی دے گی تو میرے فرزند ضرور جواب دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے فرزند سمجھ آئیں گے۔ اسی لیے یسوع نے کہا، مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، اور تمہارے دل اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے انہوں نے کہا، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سمجھتے۔ ہم زندگی کی سچائی کی شریعت سے ہرگز محروم نہ ہوں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، تاکہ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں تو ہمیشہ کی زندگی اور برکات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ چونکہ سچائی میں ایسا وعدہ ہے تو ہمیں اپنی سچائی پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم کتنے مبارک ہیں کہ خدا نے اپنی شریعت کو ہم میں کندہ کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری درجہ بندی ان لوگوں میں کی گئی ہے جنہیں بڑی برکت ملی ہے، امید کرتے ہوئے کہ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں لوٹیں گے تو ہر ایک زیادہ برکات اور فضل حاصل کرے گا۔ میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔